हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। आज मैं 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी हाफ लेसन एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने जा रही हूँ। इन फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी टिल हियर आई हैव कंप्लीटेड। ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन। राइटिंग सोर्स। We learn about significant historical events in the medieval periods from sources like Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc. as also from the varieties of different languages, Gujrapatras, religious manuscripts, treatises, edicts, decrees, biographies, painting, etc. We can gather information about the foods items and attires, convictions and the rules of conduct of the people, festivals and about people's life, etc. From these sources, the sources of these types are called written sources of history. So what is a written source? So written source means we are getting the different types of languages, painting, biographies. From we could see, we can read those. सो इन रिटर्न सोर्स वॉट एवर इज़ गिवन अस, हमको जो भी इंफॉर्मेशन है दिया हुआ वो हम उसको रीड कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, फेस्टिवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो ओवरऑल वी गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द रिटर्न हिस्ट्री। सो हियर वी हैव वेब ऑफ रिटर्न हिस्ट्री। दिस इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। Documents of proceedings in the courts of kings, genealogies, Shakhavali, correspondence dispatches, judicial verdicts, orders, then treaties, biographies, then we have travelogies of the foreign travelers, then chronicle, Tawrik. During this period, travelers from other countries came to India. They have written travelogies और अकाउंट ऑफ देयर ट्रैवल्स। हमारे देश में, इंडिया में टूरिस्ट जो आए थे, ट्रैवलॉजीज आए थे जो ट्रैवल करते हैं, उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस अपने ट्रैवलॉजी में लिखे हुए हैं। देन सम ऑफ देम आर अल बरूनी, इबन बतूता, देन निकोलो मनुकी, बाबर्स बायोग्राफी, श्री शिवा भारत और द संस्कृत बायोलॉजी ऑफ शिवाजी महाराज composed by the poet Paramanand, as well as various other biographies of different rulers and other correspondence help us to understand the policies and the administrative systems of the rulers and other diplomatic relations with others. तो इस पैराग्राफ में हमें कुछ ट्रैवलर्स के नाम दिए हैं who came to India, and they have given us throughout their biography they have written the biography of different kings like Shivaji Maharaj, Babur, and also they have helped us to understand what kind of administration and the policies were, systems were, rules on that time. तवरीक और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तवरीक का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट। इवेंट्स कौन से बीसी में हुए थे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। तवरीक रिटर्न्स बाय अल बरूनी, देन जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा आर अवेलेबल। सो the who has written this tawrik, so tariq has written by, these are the people's name given। तो ये सब ने तारीख के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। Now we will see about the Bakhar. What is the Bakhar? Bakhar is a type of chronicle that originated in Maharashtra. The chronicles helped in understanding aspects like contemporary political happenings, linguistic transition, cultural life, social condition, etc. Many of the chronicles in the Marathi were written many years after the events had occurred. As a result, they are seen to rely on hearsays. Some of these chronicles are मैकावतीची भकर, सभासद भकर, चटणीसांची भकर,
भाऊ साहेबाची बखर, etc. The work of contemporary Western historians like the Robert M.C. Sprengel and Grant Duff are also important. Okay, so what is बखर? So बखर ये टाइप ऑफ क्रॉनिकल है, मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स को सीक्वेंस में बताती है. एंड दैट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन महाराष्ट्र, मतलब ये महाराष्ट्र से ही शुरुआत हुई है और महाराष्ट्र में हुई बहुत सारी घटनाओं को उन घटनाओं के होने के बहुत सालों बाद लिखा गया है. दैट इज़ रिटर्न मैनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट हैड ऑक्योर्ड. और यहाँ हमें डिफरेंट क्रॉनिकल के बारे में दिया हुआ है. मैकावतीची बखर, भानुशालीची बखर, सभासद बखर, चिटणीसाची बखर, एक्सेट्रा. आई होप आप लोगों को ये रिटर्न सोर्स का इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया हो. अगर आपके कोई भी डाउट्स है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी. मैं अपना आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगी. आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक करें, और आपने अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो बहुत आप लोगों का धन्यवाद. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो. चिल्ड्रन, सो वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं ओरल सोर्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. थैंक यू.